बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इसके साथ साथ अपने घरों में महफूज रह के अपनी स्टडी को भी प्रॉपर टाइम दे रहे होंगे। तो let's start a new lecture. This lecture is concerned with the practical aspects of the previous lectures I have dribbled before you. So first of all, we see the learning objectives of the lecture. The name of the lecture is Calculation of Pension. अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका एक आसान सा तरीका है। आज मैं आपको पेंशन को कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर you will be able to learn the terminologies used in pension. Write the formula for calculation of pension. Calculate pension of any government servant. Solve the world problems regarding pension and calculate the pension given in the example. First of all, हम देखते हैं कि पेंशन से मुतल्लक जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं। पेंशन जिस तरीके से डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, आज दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। रेगुलर पेमेंट मेड बाय द स्टेट टू पीपल अबव द ऑफिशियल रिटायरमेंट एज एंड टू सम विडोज एंड डिसेबल्ड पीपल। Gross pension, the amount that a servant receives at the completion of service, is called the gross pension. 65% of the gross pension or net pension is allocated for monthly pension. If there any type of allowance is approved, it will be added to gross or net pension, including annual increase in the salaries of government employees or medical allowances. These are the addition to net pension of the pensioners. Commuted pension, 35% amount is reserved for computed pension, total amount delivered to servant at a time. Basic pay, the last pay drawn by the servant during retirement. Age of government servant, age on next birthday. For example, if a servant has 47 years and 3 months of age at retirement, he or she will be considered 48 years. Formula for commuted pension, age rate multiplied by commuted pension. Service in years. Service is calculated in years. If a servant retires at 26 years and 4 months and 10 days, his or her age will be considered 26 years. If he or she retires at 26 years and 6 or 7 months, age will be considered as 27 years. Age rate. For it, the term years of purchased is used. Years of purchased rate is issued by the government. For this purpose, the table is used for the calculation of age rate. This is the table for the
age rate or years of purchased by the government employees. Calculation of pension. Now let us see different examples so that we practically able to calculate the pension of any government servant. Mr. Akram was born on 1st of October 1974. He joined in service on 3rd March 1990. He retired on May 30, 2018. His last basic pay was 31,500 rupees. Calculate his pension and commuted amount. For example, these blank spaces are for your practical so that you may fill the blank spaces to complete the calculation of the process of the pension. Date of birth, joining date, date of retirement, service, age, and last basic pay he drawn 31,500 rupees. So let us calculate the formula for gross pension. As I have already discussed in the previous lectures the pension formula, now it is again being presented in front of you so that you may recall the formula of the pension. Basic pay multiplied by 7 multiplied by service in years over 300. Net pension at the rate of 65%. Commuted pension at the rate of 35%. Total amount of commute 12 multiplied by age rate multiplied by commuted pension. This is the formula for commuted pension. So net pension, if it was 13,377 rupees, if 15% increase was approved in 2011. Here we calculate 15% increase on 13,377. In the next 15% increase in 2015. Here after increase of the pay, that is the basic pay 13,377, the next 15% increase is also added to the basic pay. 10% increase in 2016. 2016 में 10% और अजाफा हुआ. अब जो 13,377 रुपये हैं उनमें 15% आपने अजाफा कैलकुलेट करना है जो 2011 में लगा. वो अजाफा इस बेसिक पे में जमा करने के बाद जो नेक्स्ट अमाउंट आएगी उसमें फिर 15% अजाफा
जो 2015 में अप्रूव किया गया वो इसमें शामिल करना है। उसके बाद जो नई अमाउंट आएगी पेंशन की उसमें फिर 10% इजाफा 2016 में जो अप्रूव किया गया वो इसमें शामिल होगा, और इसी तरीके से 2017 में भी 10% इंक्रीज पे में या सैलरी में इजाफा हुआ, इंक्रीज की गई। तो इन सब को उसमें शामिल करके जमा करके टोटल पेंशन आफ्टर इंक्रीज, टोटल पेंशन आपकी क्या होगी ये आपने इधर ब्लैंक स्पेसेस में लिखना है। इसके साथ साथ मंथली पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए दो कैटेगरीज हैं, जो बेसिक पे स्केल्स की स्केल 1 से लेकर स्केल 15 तक जो मेडिकल अलाउंस है वो नेट पेंशन का 25% होता है। इसी तरीके से ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 22 तक जो मेडिकल अलाउंस है वो नेट पेंशन का 20% उसमें शामिल किया जाता है। इन केस ऑफ दिस एग्जाम्पल, if 25% of medical allowance, then how much amount will be made? You will enlist or write the net pay after the increase of 25% of medical allowance. So total net pay is equal to net pay plus additional allowance plus medical allowance plus annual increments। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिला के उसको जो मंथली पे मिलनी है वो जो भी आपकी कैलकुलेट करने के बाद आएगी ये टोटल नेट पे होगी, जो उसको महीने के महीने पेंशन की सूरत में दी जाएगी। यहाँ पे रेट्स एंड स्केल्स ऑफ पेंशन ये भी पहले प्रेजेंट किया जा चुका है, दोबारा इसकी कैलकुलेशन के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। कंप्लीट ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एंड स्केल ऑफ पेंशन एवरेज एमोलमेंट्स। तो अगर 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो ये 70/300 होगी, और इसी तरीके से अगर 11 साल है तो 77/300। जैसे जैसे कंप्लीट ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ज़्यादा होते जाते हैं ये रेशो कम होती जाती है। पहले आपने देखा 10 साल के बाद 70/300 थी, और इसी को अगर 15 साल के बाद देखें तो 105/300 है, और इसी को अगर 19 साल बाद देखें क्वालिफाइंग सर्विस के तो 133/300 होगी। ये सारे का सारा आफ्टर 30 ईयर्स एंड अबव। अगर क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ज़्यादा भी हो गई है फिर यहाँ पे आके ये स्केल ऑफ पेंशन रुक जाएगी 210/300। तो ये उसमें जो स्केल ऑफ पेंशन ये भी एक टेबल है जो गवर्नमेंट इशू करती है, उससे आप अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला लास्ट पे ड्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ओवर 300। ये ऑलरेडी पहले आपने पढ़ा हुआ है, दोबारा यहाँ पे आपकी याद दहानी के लिए लिखा गया है ताकि इस तरह आप अपनी वैल्यूज़ जो ली हैं उनको यहाँ पे शामिल करके लिख के आप पेंशन को कैलकुलेट कर सकें। ये एक और एग्जाम्पल है पेंशन को ही कैलकुलेट करने की। तो नेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डॉक्टर जावेद, बेसिक पे स्केल 20, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने सर्विस ज्वाइन की
12 मई 1990 को। रिटायर हुए 31 अगस्त 2017 को। डेट ऑफ बर्थ, उनकी तारीख पैदाइश है 1 जनवरी 1970, और जब वो रिटायर हुए तो उस वक़्त उनकी जो सैलरी वो वसूल कर रहे थे, जो पे वसूल कर रहे थे, वो 70,000 रुपया वो बेसिक पे वसूल कर रहे थे। इसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस हैं। क्वालिफिकेशन पे 10,000 ले रहे थे। कन्वेंस अलाउंस 5,240 रुपये था। डेपुटेशन अलाउंस 6,000 रुपये। एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 रुपये और ऑर्डरली अलाउंस 3,000 रुपये वसूल कर रहे थे। सीनियर पोस्ट अलाउंस 1,600 रुपये। इंस्ट्रक्शन अलाउंस 20% के हिसाब से 5,000 रुपये। स्पेशल एडिशनल अलाउंस 1,800 रुपये। स्पेशल रिलीफ अलाउंस 4,000 रुपये। एडहाक रिलीफ अलाउंस 3,916 रुपये। डियरनेस अलाउंस 5,000 रुपये। It's for you to calculate or complete the blank spaces। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपने लिखनी है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखनी है, लेंथ ऑफ सर्विस, कितनी सर्विस हुई सालों में लिखना है। लास्ट पे 70,000 आप जानते हैं। क्वालिफिकेशन पे कितनी है, सीनियर पोस्ट अलाउंस कितनी है, और ये सारी मिला के टोटल ये कैलकुलेशन कितनी बनी वो आपने लिखनी है यहाँ पे। फार्मूला पेंशन वही, लास्ट पेड रन मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस और तकसीम 300। ये आपकी ग्रास पेंशन निकल आएगी। नेट पेंशन कैसे निकलेगी? 65% ऑफ द ग्रास पेंशन। जितनी आपकी पेंशन आती है उसको मल्टीप्लाई करना है 65/100 से, तो ये आपकी 65% ग्रास पेंशन जो आपको मंथली मिलनी है वो होगी। 10% इजाफा हुआ है 2005 में। जितनी आपकी ग्रास पेंशन बनेगी उसमें ये 10% आपने इंक्रीज करनी है। इंक्रीज करने के बाद फिर 2006 में 15% इजाफा हुआ है, वो उसमें शामिल करेंगे। फिर 2008 में 20% इजाफा हुआ है, वो उसमें शामिल करेंगे। स्पेशल पे, ऑर्डरली अलाउंस उसमें शामिल किया जाएगा, और ये आपकी टोटल जो मंथली नेट पेंशन आपको मिलेगी वो उसमें शामिल होगी। कम्यूटेड पेंशन 35% है ग्रास पेंशन का। इसी तरीके से आप जो पेंशन आपकी बनेगी उसको 35 के मल्टीप्लाई करके 100 पे तकसीम करेंगे तो वो आपकी कम्यूटेड पेंशन बनेगी। नेक्स्ट, एज बर्थडे कितनी हुई कैलकुलेट करना होगी आपको। ईयर्स रेट आपने टेबल से देखना है, और कम्यूटेशन जो फार्मूला बताया था उसको आपने कैलकुलेट करके, तो ये आपकी टोटल जो कम्यूटेड पेंशन है वो आप उसको शामिल करेंगे। ये कम्यूटेशन टेबल है अंडर पे स्केल, और ये 2001 से है। तो अगर एज नेक्स्ट बर्थडे 20 साल है तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड 40.5043, 21 ईयर
नेक्स्ट बर्थडे को आपकी उम्र अगर बन रही है तो इसका मतलब है 39.7341। ये टोटल जैसे जैसे एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे है वो ईयर्स ऑफ परचेज उसमें आपने शामिल करना है। ये आपकी टोटल एज के हवाले से ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये भी आपने देखा है जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड कम होते जाते हैं। इट्स टाइम to assess yourself, either you have learned or able to calculate pension of any government employees. These are two examples for your calculation for your practice so that you will be able to calculate the pension. So these are the questions need to be answered. The first one is what are different terminologies about pension? पेंशन से मुतल्लक जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल मैंने बताया है एज रेट, ईयर्स ऑफ परचेज, पेंशन क्या है, बेसिक पे, लास्ट पे ड्रॉन क्या है, तो कम्यूटेड पेंशन क्या है, नेट पेंशन या ग्रास पेंशन क्या है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी है जो एक पेंशन जब कैलकुलेट करेंगे तो उनके लिए आपका जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर पेंशन कैलकुलेशन? ये आपको अब याद हो गया होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये फार्मूला बताया गया था, तो इन लेक्चर्स में भी इस लेक्चर में भी ये फार्मूला बताया गया है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। What are the rate of medical allowance for gazetted and non-gazetted servants? जिस तरीके से स्लाइड्स में आपने देखा नॉन गजेटेड सर्वेंट्स स्केल 1 से लेकर 15 तक उनके लिए मेडिकल अलाउंस का रेट और है, जबकि गजेटेड सर्वेंट जो 16 से ग्रेड 22 तक हैं उनके लिए मेडिकल अलाउंस का रेट और है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वो उसके हवाले से आप उनकी पेंशन कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल 1 गिवन इन लेक्चर ऑन पेंशन। जो लेक्चर में एक एग्जाम्पल दी गई है पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए वो आपने सॉल्व करनी है, और इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 है इसी लेक्चर में दी गई है, बीच में ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी गई हैं ताकि आप उनको फिल करते हुए दुरुस्त पेंशन को कैलकुलेट कर सकें और सवाल हल कर सकें। तो इसके साथ ही आप मुझसे मदद ले सकते हैं, अपने कोलीग से, अपने क्लासमेट से मदद ले सकते हैं जिसको इसकी समझ आ गई हो। इसके साथ साथ अपने असातिज़ा से पेंशन की कैलकुलेशन के लिए मदद ले सकते हैं। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं सो दैट पेंशन को कैलकुलेट करने से मतलब आपको किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन ना रहे। इसके साथ ही लेक्चर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।